ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سنی ہوں اور آپ، میں سمجھ گیا جو حدیث شریف بخاری شریف ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور بخاری شریف مانتے ہیں اور کسی کتاب کو نہیں مانتے. ارے حدیث شریف بخاری میں کتنے ہزار ہیں، وہی مانتے ہیں اور وہ باقی سب حدیث شریف نہیں ہے کیا؟ میں سمجھ گیا آپ کون ہیں، اہل حدیث کے ہیں، چمچا ہے آپ. مجھے سنیں، دعا کے لیے آپ بولا. آپ کیا بولے یہ اعلیٰ حدیث کا چمچا ہے؟ ہم مطلب پڑھا لکھا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے نہیں، اعلیٰ حضرت کے چمچا ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، اچھا ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث کے ہیں، اہل حدیث کے اگر ہوتے تو یہ بھی اچھا ہوتا تھا. لیکن نامداری جو نامداری اہل حدیث سے، جو اللہ اور بخاری شریف کو مانتے ہیں آپ کو نہیں مانتے، وہی جمع آپ کو. آپ سنیے، کہاں سے آپ بول رہے ہو؟ پشچم بنگال اتر دیناجپور ڈسٹرکٹ سے. اچھا ٹھیک ہے، تو بنگلہ میں بھی بات کر سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو سنیے، میں بول رہا ہوں یہ جو جاتی کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے جاتی کے اعتبار سے وہ مالک ہے، مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جاتی کے اعتبار سے ہم سنی کی عقائد آپ سن لیں تو عطائی یعنی پردتو، جو بنگلہ میں آپ تو سمجھ رہے ہو شاید، پردتو عطائی میں ہم کسی کو مالک کہہ سکتے ہیں. مثلا کہ دنیا کے یہ جمی کی مالک ہے، یہ دکان کی مالک ہے. تو اسی طرح ہم کسی کو اگر مدد مانگے، بھائی ایک 500 روپیہ دے دو، 200 روپیہ دے دو، وہ کوئی بات نہیں ہے، شرعاً جائز ہے. اور ایسا نہ ہو تو آپ دنیا میں چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مالک عطائی ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی یہ سب مالک ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو اسی بنا پر، اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں رزق کا مالک تو اللہ ہے. ارے آپ مت بولیے، میں بول رہا ہوں آپ عالم ہیں تو مجھے کیوں فون کیا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاتی کی اعتبار سے آپ نہیں سمجھ رہے ہو، جاتی نہیں سمجھ تو کیا بس کرو گے میرے ساتھ؟ جاتی کے اعتبار سے بولے کس آدمی کو مالک بولتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ آدمی کو جوڑنے کی کیسے بات ہے؟ بولیے. ارے عالم کو سمجھ لیتا ہے بات بولنے کے لیے. مانے بھائی آپ کا بات ہم مان گئے. نہیں، آپ مانو یا نہ مانو، ہم کسی کو، اچھا رب کس کو کہتے ہیں آپ بولیے؟ اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے، تو مربی کیوں کہتے ہو ماں باپ کو؟ ارے آپ زیادہ مت بولیے، میری بات سنیے. اب رب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور مربی کہتے ہیں ماں باپ کو، تو مانا تو صحیح نہیں ہے، پالنے والا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ دنیا کے اعتبار سے کسی کو مدد مانگنا یہ شرعاً جائز ہے، مالک بننا بھی جائز ہے. اصل میں جو حقیقی مالک ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے کھانے پینے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے عطائی کی وجہ سے ہم کسی کو مالک بناتے ہیں اور کسی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ جاتی کے اعتبار سے حقیقی کسی کو ہم مالک نہیں مانتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہی رزق دینے والا، وہی خالق ہم کو بنانے والا، وہی ہم کو موت دینے والا، وہی سب کچھ کرنے والا. لیکن بنگلہ میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ دیکھیے آپ وسیلہ کے بنا پر، وسیلہ نہیں مانتے آپ، وسیلہ کی بنا پر ہم کسی کو بولتے ہیں بھائی آپ کے وسیلہ، یعنی آپ کی مدد سے میری یہ کام ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا بول دیجئے اس آدمی کو. ایسے ہم کسی کو مدد مانگتے ہیں، یہ عطائی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہم ماں باپ کو مربی کہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ہم کو دنیاوی کے اعتبار سے لالن پالن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پالا پوسا کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم عبد القادر جیلانی، محمود سبحانی، خود ربانی، غوث سمدانی، پیران پیر، شاہ ولی کامل عبد القادر جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو ہم پکارتے ہیں، وہ وسیلہ کے طور پر ہم مدد مانگتے ہیں. یا اللہ اپنے محبوب بندہ کے وسیلے سے ہم کو مدد فرما، یا اللہ ہم کو ان کے وسیلہ سے ہم کو مدد فرما. اور یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں کہ ہر دنیا میں جتنے اولیاء کرام ہیں سب کے قدموں پر ان کی قدم مبارک ہیں. اور وہ کیا شرک کر لیں گے؟ آپ ایسے سمجھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. عبد القادر جیلانی یعنی نبی انبیاء کرام کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد
ओली के दफ्तर में सबसे बड़े ओली हैं और ओलियों के सरदार हैं, तो आप इनके बारे में क्या कुफरी लगाओगे? नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो जिनको दुनिया मानते हैं अल्लाह ताला का सुनिए, हम कुफरी नहीं लगाए। अरे ना, आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो कि उन्होंने कुफरी किया, लेकिन आप अगर बोलो नहीं, आप अगर बोलो कि ये पढ़ना कुफरी है तो शायद उन्होंने कुफरी किया। जी नहीं, ये बात नहीं, आपको हम बोले नहीं कि ये सब कुफरी है, आपको छान करके नहीं बोले। हम सुनिए मेरा बात, हम सुने हैं जो हम पढ़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता है कि हमसे मत मांगिए, अल्लाह से मांगिए। मेरा इबादत मत करिए, अल्लाह का करिए। क्या ये सही बात है? मेरा वसीला से मत मानिए। हम अगर मानेंगे ये अल्लाह आपका नबी का वसीला से, तो ना नबी से हम लोग का रिंग हो गया ना। उसी से बोल सकेंगे हम एक इंसान, अल्लाह हमको पैदा किया, हम लोग नबी भेजा दीन प्रचार करने के लिए। अच्छा, उसीला से मांगना क्या शिरक है? हम रहमतुल्लाह अलैह हम जानते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। वो तो आपको शायद आप सुनिए, अगर उसीला नहीं मानते हो तो आप मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह को नहीं जानते थे, हम कुरान शरीफ को नहीं जानते थे। हमने अगर माना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसीले से हमको कुरान शरीफ मिली, और अल्लाह को भी अगर पहचाना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमने पहचाना। तो आप अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की उसीला नहीं मानते हो, अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हो, अल्लाह से भी ज्यादा उनको पहले आपको मोहब्बत करना चाहिए था, उसके बाद अल्लाह को आपने माना। अगर मोहम्मद को नहीं माना तो अल्लाह को कैसे आप मानोगे? किसी ने कहा आपको कि अल्लाह एक है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माना, बोला है, फरमाया है। बोले आपको हमारा नबी को नहीं मानते हैं? अरे आपने बोला तो ये क्या वो जो आपने बोला उसीला नहीं मानते, आप उसीला नहीं देते। उन्होंने बोला कि अल्लाह से मांगिए, हमसे मत मांगिए। हाँ, अल्लाह की इबादत करिए। हम इबादत करते हैं, किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। अरे इबादत के लायक। और सुनिए बात थोड़ा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, बात यही में खत्म कर दूं कि हम इबादत करते हैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, ये सही बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जैसे फरमाया था, वैसे ही हम इबादत करते हैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। लेकिन तरीका किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका से हम अल्लाह को पुकारते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह को जाहिर में हमने नहीं देखा और अल्लाह ने नमाज कैसे पढ़ना वो नहीं सिखाया, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हमको सिखाया वैसे ही हम पढ़ते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़कर दुनिया में कोई अच्छा नहीं था और ना होगा, हुआ ही नहीं और ना होगा आगे, ठीक है। हम अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब है और हमारे आका मौला हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा हुआ अल्लाह वाला है, ठीक है, अफजल मखलूकात में सबसे अफजल है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, देखिए हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसीला से अल्लाह ताला को हम मदद मांगते हैं, ठीक है, नबी की हम उसीला लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई नेक औलिया किराम को उसीला लेकर अल्लाह ताला को मांगते हैं तो कोई ये इसमें क्या शिर्क नहीं है, ठीक है, ये कोई बात नहीं है। ये बात अर्जी में छोड़ दो, ये आसान बात है, ये कोई भी जानते हैं कि अगर एक मजिस्ट्रेट के पास जाओ तो वकील को आप पहले मिलना पड़ता है। ये दुनियावी कानून आप देखिए तो समझ जाओगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और ये जो कलाम है आपने बोला कि ये शिरक है या नहीं आप बताओ, तो मैं ये कहूँगा अगर आप शिरक कहो तो अब्दुल कादिर जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैहि को आप फतवा लगाओ, और उनको फतवा ना लगाओ तो बिल्कुल बगैर टेंशन मत लो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और लोगों को बताओ कि ये एक बहुत बड़ी दुआ है, इससे शिफा मिलती है। मैं समझता हूँ कि आप समझ जाओगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा ठीक है, दुआ में याद करना, अगर बात में कोई कड़ी हो जाए तो माफ कर देना, हम सुन्नी हैं, हम किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं, हम इत्मीनान चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। जाति धर्म बंधन
নির্বিশেষে। আপনি বাংলা বুঝেন, হ্যাঁ, তাই আমি বলছি আমরা সবাই যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারি। এইটা আর सुन्नी जमात के अलावा सुन्नी जमात के अलावा जो 73 फिरके हैं और उनके मुशब्बा रखे सभी बुजुर्गी हैं, सभी जहन्नमी है। मत जाइए, सुन्नी को मानिए, औलिया उलिया को मानिए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने संगठन निकले हैं और जितने जमात निकले सब गुमराही में है। एक ही जमात है जो नबी से लेकर आज तक औलिया उलिया किराम के सिलसिला जो एक ही लंगत है, इसी में आप रहिए। मैं ज्यादा बात नहीं सुनूंगा। आप किसी और जमात के हो सकते हैं, आपको मैं ये नसीहत कर रहा हूँ कि आप सुन्नी जमात पे आइए, औलिया उलिया को मानिए, ठीक है। हम किसी को नहीं मानते हैं। हाँ तो ठीक है, आप लीडर है, आप लीडर है को मानते, सुनिए, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुरान को मानते हैं, सही बुखारी शरीफ ये हदीस है हम लोग का। और तो आप ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सुनिए, मैं बस करता हूँ इसे लेकर, ठीक है। आप बोले 73 के सब जहन्नम में जाएंगे, आप सब जो सुन्नी है वो जन्नत मिले, कौन पता है अल्लाह किसको जन्नत देगा। अरे ये हदीस शरीफ की बात है, मुझे बस मत लड़ो। मुझे हुजूर पुकार के आपने फोन किया है, मैं जो कहूँगा वो मानो, और बात यहीं में खत्म करो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सुन्नी हूँ, मैं दुख पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, मेरे जबान कड़वा मत करो, इसी में भलाई है। मैं किसी को नहीं दुख पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि हदीस शरीफ में आया है 73 फिरके देर होंगे और बनी इस्राइल में 72 फिरके थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में 73 फिरके होंगे, तो 72 दूसरे होंगे, एक ही जन्नती होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं और सहाबा के हमको मानते हैं, उसी की राह पर चलते हैं, वही जन्नती होंगे। और हम वही जमात में हैं, हम औलिया उलिया किराम से जो लंगर है, तो आप सीधा ऊपर में जाइए तो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचते हैं, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं सुन्नी हूँ और आप, मैं समझ गया, जो हदीस शरीफ बुखारी शरीफ मानते हैं, हम अल्लाह की किताब मानते हैं और बुखारी शरीफ मानते हैं और किसी किताब को नहीं मानते। अरे हदीस शरीफ बुखारी में कितने हजार हैं, वही मानते हैं और वो बाकी सब हदीस शरीफ नहीं है क्या। मैं समझ गया आप कौन है, अहले हदीस के हैं, चमचा है आप। मुझे सुनिए, दुआ के लिए आप क्या बोले, आला हदीस का चमचा है, हम उतना पढ़ा लिखा नहीं है। आला हजरत के चमचा होते तो बहुत अच्छी बात थी, अच्छा होते थे, ठीक है। आप अहले हदीस के हैं, अहले हदीस के अगर होते तो ये भी अच्छा होता था, लेकिन नामदारी जो नामदारी अहले हदीस है, जो अल्लाह और बुखारी शरीफ मानते हैं, आपको नहीं मानते, वही जमात के हैं आप, लेकिन असल में हकीकत में अहले हदीस नहीं है, ठीक है। गुमराही में हम आपको कुरान शरीफ एक आयत बोलते हैं। नहीं, अरे आम आदमी क्या मुझे बोलोगे, रखो खातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा, बात यही पे खत्म। अगर आप जन्नती होना चाहते हो तो सुन्नी जमात में रहो, आला हजरत को मानो और औलिया किराम को मानो, यही है एक ही जमात जो सही पर है। एक जमात सही होने के लिए उलमा किराम दलील नहीं है, औलिया किराम दलील हो सकता है, क्योंकि आलिम उलमा हर जमात में हो सकते हैं, लेकिन औलिया किराम हर जमात में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बुखारी शरीफ मानते हो और किसी किताब मानते हैं, अरे अल्लाह को माना, किसने कहा अल्लाह को मानने के लिए, अल्लाह कहाँ है, मैं नहीं मानता हूँ। वो तब मानता हूँ जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको फरमाया था कि अल्लाह एक है, मान दो, तो हमने मान लिया। तो इससे पता चला कि कुरान शरीफ की आयत के मुताबिक हो गई कि अल्लाह ने फरमाया, अरे मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि किसी को मुझसे मोहब्बत करना है तो पहले आपको मोहब्बत कर ले। तो हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत कर दिया। भाई बस मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, फोन